जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज का इंट्रो थोड़ा डिफरेंट होने का रीज़न ये है दोस्तों कि आज हम रिव्यू करेंगे करणवीर रामायणा लेजेंड्स ऑफ द मर्यादा पुरुषोत्तम और ये है इस सीरीज का पहला भाग बाला कांड एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विमानिका कॉमिक्स इन एसोसिएशन विथ द राइट ऑर्डर। जो भाई बंधु इस कॉमिक बुक के अनाउंसमेंट के टाइम से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, they know that it had been on pre-order for a really long time and now finally it has been published. So yeah, let's talk about it starting with the credits. So guys, ये रहा all the creators. Let's flip some of the inside pages. Without revealing too much, बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, रामायण के बारे में ऐसा कोई स्पॉइलर तो शायद ही होगा जिससे आपका मूड खराब हो सकता है और आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बेहद हैम्पर हो सकता है। सो वैसा कुछ सीक्रेट तो है नहीं। सो येस, दिस इज गोइंग टू बी अ 3-part लॉन्ग सीरीज और ये रहा उसका पहला इंस्टॉलमेंट जहाँ पे श्री राम के ओरिजिन को कैप्चर किया गया है टिल हिज मैरिज और उसके बाद वाला स्टोरी इसके दूसरे खंड या दूसरे कांड में कवर किया जाएगा। सो यहाँ पर वो ताड़क राक्षसी को वध करना, उसके बाद श्री राम का हर धनु भंग करके सीता को स्वयंवर में जीत लेना, वो सारा पोर्शंस कवर किया गया है। इससे पहले भी रामायण के ऊपर ढेर सारा कॉमिक बुक सीरीज ग्राफिक नॉवेल्स रिलीज किया गया था, नेमली अमर चित्रकथा वाल्मीकि रामायण। इट इज अ चंक ऑफ रीडिंग मटेरियल। ढेर सारे कांड यहाँ पर है, वॉल्यूम के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। सो देर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल। अगेन अमर चित्रकथा की तरफ से ही देर इज रामचरितमानस यानी कि तुलसीदास रामायणा एंड देर इज अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन रामायणा कॉल्ड रामायणा 3392 AD which is a futuristic take or an ultra modern day interpretation of the Ramayana in a post apocalyptic scenario if I can remember correctly. So yes, ये सारा रामायण का इटरेशन ऑलरेडी आ चुका है इन कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल फॉर्मेट एंड बहुत हद तक करणवीर रामायणा is mostly inspired from वाल्मीकि's रामायणा। यहाँ पर कोई तड़क भड़क वाला एक्स फैक्टर नहीं है। It's true to the texts. So for some it might get boring because you already know the story and you have read it a bunch of times before. कहानी लीनियर है, स्टोरी टेलिंग में भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन खास किया नहीं गया है। The coloring is a bit different, although it kind of looks flat, but mostly you can say that it is quite experimental. Like it's very confusing if I put it in words. It is flat and vibrant at the same time. But I have personally seen the colorist यानी कि चारबाग दीप्ता's work. He is very talented, but for some reason I believe कि थोड़ा और vibrancy अगर इसमें डाला जाता तो शायद बेहतर रहता because yes, places like this it looks really kind of flat. And I wish कि there were more color gradations instead of just a few. There are not many layers. हालांकि penciling inking काफ़ी बढ़िया है. So yeah, it was the call of the publisher and they have opted for this tone of coloring. The storytelling paneling is kind of cinematic, but other than that it's just like an old wine in a new bottle, or you might just say old wine in old bottle only because it kind of also gives out that vintage old school vibe, like it's an amalgamation of both modern day and old school style. And although it might not seem like it is best of both worlds, but somehow it is quite presentable. Vimanika is always mostly focused on mythologies, Indian myths, legends and history, and it is Karanvir's or we can say Vimanika's interpretation of the Ramayana. It is true to the source material और authentic भी है दोस्तों। So yeah, there is that. And that's my basic review about it. Storytelling, overall story, ये सब के लिए मैं इसको 3.5 दूंगा because it felt like I was just rereading Ramayana all over again. It's a great thing that they are sticking to the text, but yes, we are in a need of an X factor every now and then, which will totally differentiate it from the rest of the iterations of Ramayana comic books. यहाँ पर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का कोशिश किया गया है विच इंडीड इज अ गुड थिंग, बट आई ऑल्सो बिलीव कि जैसे आर्ट वर्क और कलरिंग में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया गया है। आई नो सम ऑफ यू गाइज माइट लाइक द कलरिंग एंड आई नो सम ऑफ यू विल नॉट। आई पर्सनली हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट। वैसे ही अगर स्टोरी टेलिंग के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है विदाउट वार्पिंग द फैक्ट्स, even with sticking to the source material, they can definitely try out something which can eventually turn out to be its USP and make it a must buy. And as I said, original content तो है नहीं, so story के लिए मैं इसको ज़्यादा अंक चाहकर भी नहीं दे सकता, so it is going to be a 3.5 out of 5. वहीं artwork के लिए भी मैं इसको 3.5 ही दूंगा. The overall pencils and inking is all good. The coloring was also decent, but then again, I didn't quite enjoy it as much as I thought I would.
इसका फ्रंट कवर तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। ये रहा इसका बैक कवर। इसका MRP है ₹299। ओवर 60 पेजेस का कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कहानी जहाँ से शुरू होता है दोस्तों, इट इज़ वे बिफोर राम केम इन टू एग्जिस्टेंस। सो श्री राम के जन्म से पहले भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। फिलहाल इट्स ओनली पब्लिश्ड इन इंग्लिश और इसका हिंदी एडिशन के बारे में कोई प्लान्स या जानकारी अभी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। सो गाइज या ओवरऑल दैट्स माई रिव्यू अबाउट करणवीर्स रामायणा लेजेंड्स ऑफ द मर्यादा पुरुषोत्तम Part 1 Balakand, which gets a total of 7 out of 10 from Neo Comics. So yes, सुपर हीरोज और हॉरर कॉमिक्स के बीच में अगर आप काफी टाइम से खोए हुए हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग फ्रॉम आवर सनातन धर्म, फ्रॉम आवर मिथ्स एंड लेजेंड्स, you can try out this newly published comic book from Vimanika Comics. See you all in the next video guys. Till then, take care. Bye bye.